मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है। जो मैं नाम बोलूंगा सिर्फ वही आगे से यस एक्सक्यूज मी, आप साइलेंस प्लीज, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, बी साइलेंट प्लीज। सोबिया अकरम प्रेजेंट है। अकरम प्रेजेंट है। बस खामोश हो जाएं, कोई और ना बोले। जियाउल हसन, जियाउल हसन, अनम जारा, अनम जारा, जुनैरा जहूर Yes, sir. है, Yes, present, sir. जुनैरा मुख्तार, साइमा शरीफ, साइमा शरीफ, शाजिया मकसूद, Present, sir. शगुफ्ता परवीन, शगुफ्ता परवीन, अफीफा शहजाद, अफीफा शहजाद, जुबैर आपकी हो गई अटेंडेंस यार। अफीफा शहजाद नहीं है। सदफ आबिद, सदफ आबिद, प्रेजेंट सर। थैंक यू। आयशा अमरीन नजर, Yes, sir. नाउ मेहरुन निसा,
महरुन्निसा, मुकद्दस, शकीला आस मोहम्मद, ओके। I was explaining in the previous session. In previous session, I was describing the statements, how to write hypothesis. तो वहां मैं मीन पे था एक्चुअली, जब ये हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है कि टोटल इंफॉर्मेशन जो भी लोग स्टैंड्स लें, कोई नंबर दें, उन सबको ऐड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल पे डिवाइड करते हैं, तो ये मीन आ जाता है। तो उस मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यू 1 लिखेंगे तो मीन ऑफ द ग्रुप 1 और मीन ऑफ द ग्रुप 2 म्यू 2। सो नल हाइपोथेसिस में उसने कहा है ये इक्वली होते हैं, मीन ऑफ द ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ द ग्रुप 2 आर इक्वल। दैट मीन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन on the effect of coffee or tea on the level of energy. So the alternative hypothesis becomes like you can see कि वो equal नहीं होती, उनकी values equal नहीं होती। Then we go for some more statements with examples. Null hypothesis, no change in the dependent variable. You know, जब I was talking about the variables, we discussed about 3 types of variable. The measures were independent and dependent, and someone there was a intervening variable. So the effect of independent variable on dependent variable, तो ये causation है, cause and effect का concern यहाँ पे show होता है। तो null hypothesis में researcher ये claim करता है कि there is no effect of independent variable on the dependent variable. So there is no change occurs in the dependent variable due to the effect of independent variable. For example, there will be no significant difference in test scores between 5th grade boys and girls on XYZ achievement test. Another example you yourself can frame, there will be no significant difference in test scores between English literature and English linguistic groups of Minhaj University MPhil level. You may also write it for your own class as well. There will be no significant difference in assignment scores between linguistic MPhil class on the basis of gender, यानी बॉयज और गर्ल्स के स्कोर में कोई फर्क नहीं होगा। Accordingly, directional or alternative hypothesis, it specifies the direction of the change to independent variable. The researcher predicts something will take place. So क्योंकि यहाँ प्रेडिक्शन होती है कुछ होगा, इसके असर से कुछ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल को इस तरह लिखते हैं कि देयर विल बी इफेक्ट ऑफ या देयर विल बी चेंज, या आप देख रहे हो लिखा हुआ है 5th grade girls will have higher scores on XYZ achievement
less than 5th grade boys. अब मैं आप लोगों से के दरमियान लड़ाई नहीं डालना चाहता स्टेटमेंट देके, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल आप सुन लें, MPhil linguistic girls will have higher scores on purpose statement assignment achievement than English linguistic boys, और ये उलट भी हो सकता है. So that was just for humor. I was making an hypothesis to fit on you. So these are the some examples of therefore next I have to move towards research hypothesis. Earlier we studied null hypothesis and alternative hypothesis. Now I am talking about the research hypothesis. That is the third type of hypothesis. इसके अंदर क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, अभी देख लेते हैं. ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल alternative hypothesis. Does not specify the direction of the change in the dependent variable. Dependent variable में कोई change आनी है या नहीं आनी है, उसका कोई डायरेक्शन ये नहीं देते. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि जिस तरह हमने प्रीवियस में कहा कि अचीवमेंट टेस्ट स्कोर जो है वो एक ग्रुप का ज्यादा होगा दूसरे से, तो ये डायरेक्शन भी है और स्पेसिफिकेशन भी है कि हमने कह दिया वहां पे कि 5th ग्रेड गर्ल्स का एक सर्टन जो टेस्ट स्कोर था उसमें उनकी अचीवमेंट ज्यादा थी एज कंपेयर टू द बॉयज, ज्यादा होगी. ये फ्यूचर लैंग्वेजेस की बनती है, फ्यूचर टेंस में इसको लिखते हैं. लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो बड़ा सिंपल और इन बिटवीन बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर विल बी अ डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स ऑन XYZ अचीवमेंट टेस्ट फॉर 5th ग्रेड बॉयज एंड गर्ल्स. तो बड़ा सिंपल सा और बड़ा एमिकेबल सी स्टेटमेंट दे दी कि जी इसका कुछ असर होगा. अब हमें नहीं पता क्या असर होगा. किसी ने हैंड रेज किया है, हु इज दैट? सकीना, आप अपना करें अनम्यूट और बताएं क्या मसला है. I have allowed you to unmute yourself, your mic please. कोई बात करना चाह रहे थे, बताइए. अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी Sir, Mariam Maqsood is here. जी, yes, talk please. Sir, in first session I couldn't mark my presence because of like I couldn't able to unmute my mic, and in this session the same repeated, and now I have a question also. May I ask, sir? Yes, yes, I am waiting your question. Thank you, sir. Sir, would you please define this directional alternative hypothesis in detail? Like I have a query. Like you told us that this directional hypothesis, alternative hypothesis will base on future time. One thing. And the second thing in the slide mentioned is that specifies the direction of the change in the dependent variable. It means that it is not going to change the dependent variable, and the researcher's prediction will take place in that procedure. Am I right, sir? No, never ever variable will be changed. Causation, cause and effect be changed. Effect of independent variable on dependent variable will be changed. Sir. In directional hypothesis, researcher assume that, क्योंकि ये assumption है ना, hypothesize कर रहे हैं अभी हम, वो तो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि rather it is true or accepted or rejected.
So Okay, the sir. claim of researcher is there that uh, uh, it might have effect. It might have. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Welcome. So another example of research hypothesis लिखने की guidelines क्या है? State the variable in this order. You can see here independent variable first, then dependent variable, and then control whatever effect cause जो भी लिखना है वो थर्ड पोजीशन पे हम लिखेंगे. When comparing, explicitly state the groups if variables are related. Specify the relationship between the variables. जिस तरह हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ग्रुप की बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, फिर उनके साथ रिलेटेड वेरिएबल था अचीवमेंट स्कोर, उसकी हमने बात की. फिर उनके दरमियान हमने कहा कि कोई डिफरेंस है या नहीं, उसकी बात की. तो ये इस तरह से इसको स्टेट करने की बात हो रही है. व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर द वेरिएबल्स आर causation and effect. Make a prediction about change you expect in your groups. जो चेंज आना चाहते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज आएगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो ग्रुप्स के अंदर, उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वाचिंग टीवी आवर्स हैव इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट. यानी जो बच्चे एक हाथ से ज्यादा आवर्स टीवी देखते हैं तो उनका टाइम वहां कंज्यूम हो जाता है, और उन्हें स्टडीज के लिए टाइम कम मिलता है, तो उनकी अचीवमेंट जो है वो उस पर असर पड़ता है. अब ये डायरेक्शनल इन अ सेंस है कि असर जरूर पड़ता है. अब हमें नहीं पता किस तरह का पड़ता है, कि उनकी अचीवमेंट कम होती है, कम नहीं होती है, वगैरह वगैरह. Statement information about the participants and the site unless it repeats information stated in your purpose statement. तो वो जो जिस तरह से पर्पस स्टेटमेंट के अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट बनाई थी, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी थी, हाइपोथेसिस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करेगी, जो कि पर्पस स्टेटमेंट के अंदर भी जब आपने लिखा था तो वेरिएबल्स की बात की थी, उनके आपस में कॉजेशन की बात की थी, उनके इफेक्ट की बात की थी, उनकी नेचर की बात थी. एक वेरिएबल के असर की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर क्या चेंज आती है. वेरी सिंपल इज अगेन कि आप बॉइलिंग पॉइंट है या कुकिंग टाइम है, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर से, वो इन्फ्लुएंस होता है प्रेशर से. इसी तरह टाइम कम हो जाता है. कैसे? आप टेम्परेचर रेज करते हो तो जिसने 10 मिनट में बॉयल होना था वो शायद 8 मिनट में बॉयल हो जाए. इसी तरह वॉल्यूम या प्रेशर का एक इम्पैक्ट होता है. अगर आप उस बर्तन को ओपन रखते हैं तो वेपोरेशन ज़्यादा होती है, और उसका जो प्रेशर है वो कम होता है और टाइम लगता है. अगर उसको लिड से कवर करें तो हम देखते हैं कि चाय जल्दी उबल जाती है, जल्दी बन जाती है. सो दीज आर द cause and effect relation. Who is asking some, please? You may ask, you may unmute your. Hello. Unmute your mic and ask if you want to say something. Excuse me, sir. Yes. Sir, you have given us the example in null hypothesis that there would be no change in the test scores of boys and girls. Sir, I Yes. want to ask which one will be the dependent variable or independent variable in this case? I can't understand this. Okay. Students achievement score जो है, that is the dependent variable, जो कि change score के अंदर आनी है ना.
Yes, sir. तो वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या है? वो जेंडर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज और गर्ल्स। Sir, both of the groups. Both the groups. बोथ ऑफ द ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस, वो Okay, thank you, sir. वेरिएबल्स का ग्रुप है ना, जिसमें दो हिस्से हैं, बॉयज और गर्ल्स। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. वेलकम। सो हियर आर द एग्जांपल्स। जो पीछे हमने बातें की, यहाँ 3 एग्जांपल्स हमने स्टेट की हैं और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ी चेंज भी है। Female teachers are likely to have more favorable perceptions of inclusive education than their male counterparts. Inclusive education मैंने आपको पहले भी बताया था कि जेंडर वाइज, कस्टम्स, रिलीजन, एथनोग्राफी, रंग, नस्ल, मजहब, व्हाटएवर आप जो भी कह लें, सबका मिक्सर ग्रुप जब इकट्ठा बैठ के पढ़ता है तो हम कहते हैं दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी हमारे यहाँ तो ये है ना कि ये बॉयज स्कूल्स हैं, ये गर्ल्स स्कूल्स हैं, ये स्पेशल स्कूल है उन बच्चों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। ठीक इसी तरह कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ बहरे बच्चों के लिए अलग जो रखती हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ सिस्टम्स ऑफ चेन्स ऑफ स्कूल्स हैं कि जहाँ पे उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को सामने रखा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि HSM में सब नहीं जा सकते, सारे शोइफात में नहीं जाते, सारे बीकन हाउस में नहीं जाते। तो ये इस तरह से ये क्लासेस हैं बेसिकली उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद पर बनी हुई। जब इन सब को आप एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे अपॉर्चुनिटी देंगे बैठ के पढ़ने की, तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन बन जाएगी। ठीक, तो इस हाइपोथेसिस में ये कहा जा रहा है कि फीमेल टीचर्स आर likely to have more favorable perceptions of inclusive education than their male counterparts. Is it clear? Then the second hypothesis is younger instructors are likely have more favorable perceptions of inclusive education than their older colleagues. Third hypothesis is teachers with a higher level of education will have more favorable perceptions than their colleagues with lower level of education. So independent variable in the first hypothesis is a group of teachers on the basis of gender, male और female दोनों, उनकी perceptions हैं किन के बारे में? Dependent variable है inclusive education। इसी तरह second hypothesis के अंदर age of the instructors, यानी younger or older colleagues, ये ग्रुप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और डिपेंडेंट है their perceptions about the inclusive education. Accordingly, in the third hypothesis, level of education of teachers, वो हायर है या लोअर लेवल है, ये ग्रुप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका with high level more favorable perceptions than their favorable perceptions about whatever you can write over here. So these are the different examples of hypotheses which are research hypotheses. ये non directional alternative hypotheses हैं। ये इन्हें चेक किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारी रिसर्च स्टडीज के रिजल्ट्स क्या हैं। We do have some more examples. Hypothesis number 4. Less experienced teachers are likely to be more favorable for inclusive education than more experienced teachers. So on the basis of experience, it is also differentiated. This hypothesis gave the direction. G. Maria Hanif, what do you want to say?
सर अभी आपने बोला कि ये एग्जांपल्स हैं वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की हैं, तो इनमें तो मतलब एक डायरेक्शन दी गई है कि वो मोर फेवरेबल होंगे। रिसर्च हाइपोथेसिस में कह रहा हूँ, दीज आर द रिसर्च हाइपोथेसिस। अगर नॉन डायरेक्शनल बोला गया लफ्ज तो उसको एग्जेम्प्ट कर दें, दीज आर द रिसर्च हाइपोथेसिस एग्जांपल्स। और इसमें आइडेंटिफिकेशन टू सम एक्सटेंट कोई डायरेक्शन जरूर है। हम फेवरेबल मोर फेवरेबल का लफ्ज यूज कर रहे हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन बेसिकली। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। फिफ्थ हाइपोथेसिस अबाउट द एक्सपीरियंस के who have experience teaching in inclusive classrooms are likely to be more favorable towards inclusive education than their colleagues without such experiences. Similarly, we do have another example of the hypothesis. Teachers who have received training in teaching students with special needs will likely have a favorable attitude towards inclusive education. तो यहाँ 100% डायरेक्शन है, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं है, ओनली सिंपल ग्रुप वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो टीचर जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है विद स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, वो मोर लाइकली फेवरेबल एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ कंपैरिजन नहीं हम करेंगे, यहाँ प्रीवियस में हम कर सकते थे कंपैरिजन। अगर हम यहाँ डाल दें एक और वेरिएबल ग्रुप में कि एज कंपेयर टू दोज टीचर्स हु हैव नॉट टेकन द ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, फिर हम कंपेयर करेंगे उनका दोनों का आपस में ग्रुप्स का। हुमैरा, व्हाट यू वांट टू से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि हाइपोथेसिस जो है, अब आपने पहले डिस्कस किया नल हाइपोथेसिस का, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, फिर रिसर्च हाइपोथेसिस का। तो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ऑब्वियसली वो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, उसके अंदर नल या अल्टरनेटिव आएगा। मींस हम एक नल बनाएंगे फिर अल्टरनेटिव आएगा। जी जी। तो हम कितने हाइपोथेसिस बना सकते हैं? It depends on the objectives. If your research objective is single one, then you can go for only one hypothesis. Or if objective have some more space in it, for example, the objective of my research is to explore the perceptions of people about understanding of grammar. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनेगा। अगर मैं इसके साथ आगे और ऐड कर देता हूं कि परसेप्शंस अबाउट ग्रामर एट एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल, तो अब दो लेवल ऐड हो गए ना, दो अलग अलग लेवल, तो अब ये हाइपोथेसिस दो बन जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें इनकी जेंडर की बात कर दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, तो फिर दो हाइपोथेसिस जेंडर की बेस पे बनेंगे, एक मेल का और एक फीमेल का। अच्छा, अगर इसमें ऐड में कर दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकल, मीन लोकेलिटी रूरल है या अर्बन है, तो ये मजीद दो और हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर एक क्वेश्चन और है कि हम जब भी रिसर्च करते हैं तो उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, मिक्स मेथड हो सकती है। तो क्या हम क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस बनाएंगे? यस, बनाते हैं। क्वांटिटेटिव में तो बनता है। क्वांटिटेटिव में तो बन ही जाते हैं, क्वालिटेटिव में बनाते ही हाइपोथेसिस है, वहां तो रिसर्च क्वेश्चन की तरफ जाते ही नहीं है। सर क्वालिटेटिव में भी बन सकते हैं? क्वालिटेटिव में आप दोबारा बोलिए। सर क्वालिटेटिव अप्रोच जो है उसमें हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं या बनते हैं? बनाते हैं। वो किस तरह बनाते हैं कि पहले से प्रिवेलिंग फिनोमेना या थ्योरी को हम कह देते हैं, निगेट कर देते हैं, यानी उसके अगेंस्ट चले जाते हैं कि ये फिट नहीं होती, फिर उस पर काम करके हम जो भी रिजल्ट्स आए वो बता देते हैं कि फिट होती है या नहीं होती। तो उस हाइपोथेसिस को हम बेसिकली टेस्ट करते हैं। वहाँ सिंपल और एक या दो लेस हाइपोथेसिस की तरफ हम वहाँ जाते हैं। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि हम जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव रिसर्च हो तो उसमें स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को जो है वो हमें देनी होती है कि किस तरह से हम जो है अपनी उसको प्रूव कर सकते हैं।
लाइक SPSS हमें यूज करना होता है, तो क्या हमें ये चीजें सिखाई जाएंगी कि SPSS का यूज और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज? बिल्कुल सिखाई जाएंगी। जो जो चीज़ें आपके कोर्स आउटलाइन में स्कीम्स ऑफ स्टडीज के अंदर मौजूद हैं वो सिखाई जाएंगी। ये इनिशियल तैयारी इसीलिए करवा रहा हूँ, इन पे इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ कि ये चीज़ें जब क्लियर होंगी तो वहाँ जाके हमें आसानी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको बता दूं कि कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है और मैं खामोश हो जाऊं, फिर मुझे बाकी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी ना कि मुसलमान होने के बाद फिर करना क्या पड़ता है। तो जब मैंने इसको डिफाइन किया, वेरिएबल्स की तरफ आया, पर्पस स्टेटमेंट आपसे बनवाई, रिसर्च क्वेश्चन बनवाए, अब हाइपोथेसिस पे फोकस कर रहा हूँ। तो ये मैंने सुबह स्टोरी सुनाई थी फर्स्ट लेसन के अंदर, सेशन के अंदर, उस स्टोरी की कंप्लीशन की तरफ पढ़ रहा हूँ बेसिकली। तो फाइनली एक स्टेज आनी है मेथोडोलॉजी में जहाँ पे हमने डाटा को एनालाइज करना है। तो वहाँ दोनों मेथोडोलॉजीज बताई जाएंगी कि क्वांटिटेटिव होगी तो किस तरह का एनालिसिस करना होगा और क्वालिटेटिव होगी तो कैसे एनालिसिस करना होगा। आप दुआ करें कि ये जो कोरोना वायरस का इशू है इसकी वजह से लॉकडाउन खत्म हो और हम कन्वेंशनल क्लास में बैठें, क्योंकि वो सम टेक्निक्स हैं और प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, ज़्यादा आसानी से समझ आएगी जब मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ चीज़ें। यहाँ भी खैर बहुत फेवरेबल है ये भी सिचुएशन जूम पे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो मैं सिखाऊंगा वो सब चीज़ें। सर सर एक और चीज थी कि आपने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम लिटरेचर रिव्यू को डिस्कस करते हैं, किसको तो सर डिस्कस ये करते इसका हैं? लिटरेचर रिव्यू को, हाँ हाँ, तो सर क्या इसका अलग से चैप्टर बनता है या ये इसी के अंदर होगा? क्योंकि जो मैंने अगर आप मास्टर्स थीसिस के लिए जाते हैं, सुने, अगर आप थीसिस के लिए जाते हैं तो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 में होता है और लिटरेचर रिव्यू सेकंड चैप्टर सिर्फ लिटरेचर रिव्यू ही होता है। अगर आप रिसर्च यस सर, आर्टिकल जा रहे हो तो ये इन दोनों को इकट्ठा लिख देते हैं, पहले इंट्रोडक्शन का लफ्ज लिख लेते हैं और उसमें ही इंक्लूड कर लेते हैं फाइनली लिटरेचर रिव्यू को भी। सर मुझे यही एम्बिग्यूटी थी क्योंकि हमने जब रिसर्च थीसिस लिखा तो उसमें पहला इंट्रोडक्शन का था, दूसरा लिटरेचर रिव्यू का था, तो वो मुझे इस थीसिस में वजह ऐसा से ही होता है, एम्बिग्यूटी हुई। थीसिस में ऐसा ही होता है। और ये वेरिएंस है इसके अंदर। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिस है ना कि 5 चैप्टर बनाने हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर व्यू है, फिर मेथोडोलॉजी है, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन है और एंड पे जो है वो रिपोर्ट या रिजल्ट्स हैं। लेकिन यस सर, prevailing practices across the world are different. People are going for 6 or 7 chapters. They have identified some other components to be added in the research report, so they do accordingly. तो ये वेरी करता है। ये करेंगे, सारी बातें हम इंशाल्लाह करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को हाउ नाउ है और आप रेलेवेंट बात कर सकते हो। दैट्स गुड एनफ। थैंक यू सर। Let's go forward towards another example of the hypothesis, that is the 7 hypothesis. You can see teachers who use French as the language of instruction are likely to have a less favorable attitude towards inclusive education than teachers who use English or bilingual teachers. तो ये different settings की different ways से hypothesis को state किया हुआ है ताकि ये understandable हो। I think so आपने इसको यकीनन समझ लिया होगा। हाँ, अब इसी की ही प्रैक्टिस दोबारा मैं करूंगा लेकिन थोड़े डिफरेंट वे से। एक हम टॉपिक लेते हैं, रिसर्च टॉपिक। जी, जिन्होंने हैंड रेज किए हैं बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? नईम उर रहमान सर। जी नईम साहब। सर ये हाइपोथेसिस हम जो लिखते हैं वो तो तकरीबन ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेटेड हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को देख के हम हाइपोथेसिस लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी जी। इसका रिजल्ट अगर इसके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट आए तो क्या ये रिसर्च हमारी उस लेवल की हो जाएगी या नहीं? हाँ नईम रहमान, बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपसे शेयर करूं। ये रिसर्चर की जिम्मेदारी नहीं है कि रिजल्ट उसका अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव है या नहीं, या हाइपोथेसिस उसका एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। एक्चुअल थिंग यही है कि या तो उसका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए
या उसका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए, तीसरी बात नहीं होनी चाहिए कोई। तो रिसर्च कंडक्ट हो गई, जो रियलिटी थी, जो प्राइमरी डाटा था, उसकी बुनियाद पर उसने एनालाइज करके बता दिया कि मेरा डाटा ये कहता है। अच्छा, इसमें हमें होता है कि अच्छा कोई क्या कहेगा, कोई कोई इस पे क्वेश्चन रेज करेगा। तो रिसर्च की खूबसूरती यही है कि इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, मैंने जिस तरह बताया कि आप डिस्कशन में जिक्र करते हो कि लोगों की रिसर्च के रिजल्ट्स इन लोगों के 1 2 3 4 के ये थे, तो मेरे भी ये हैं। इसका मतलब है कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो वेट कर गया उन रिसर्च की बुनियाद पर। कहीं आप ये भी जिक्र करते हो डिस्कशन के अंदर कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट है रिसर्च रिजल्ट्स बाकी लोगों की रिसर्च के रिजल्ट्स से। तो आपने रियलिटी स्टेट करनी है, उसका जिम्मेदार रिसर्चर नहीं है कि वो उसका एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। आपका क्वेश्चन था कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे क्या कोई फर्क असर पड़ता है या वो रिसर्च हो जाती है। यस, रिसर्च हुई है तो साबित हुआ है ना कि वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ या एक्सेप्ट हो गया है। हाँ, जिसने इस पे क्वेश्चन करना है उसके लिए जवाब ये होता है, जो रीजनेबल लोग हैं, जो समझते हैं रिसर्च एथिक्स को और जिनको उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो इस पे क्वेश्चन करते ही नहीं है। हाँ, उनके लिए रेमेडी ये होती है कि दे गो फॉर देयर ओन डाटा सेटिंग्स, they make their own objective, they go for